let's do some accounting, let's do some accounting. I am an accountant, let's do some accounting, let's do some accounting, let's do some accounting. I am an accountant. Hello and welcome to my channel Commerce with Seema Children. So today's topic is capital adjustment. Capital adjustment क्या होता है? Capital adjustment actually तुम्हें टॉपिक मिलेगा पार्टनरशिप में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट में, डेथ में. ये वो कॉन्सेप्ट है जो अगर क्लियर होता है तो कॉन्फिडेंटली तुम एक 6 मार्कों को करेक्टली करते हो, और अगर तुम्हारा यहाँ कॉन्फिडेंस शेक करता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू एनी कंसेप्चुअल नॉन क्लैरिटी, देन यू आर बाउंड टू मेक mistake here and that is going to destroy your marks. So what I have planned today is that I am going to take up this important topic. This is very important topic children of capital adjustment जो मैं admission के साथ start कर रही हूँ. So in admission chapter how many types of capital adjustments are there? There are basically 3 types of capital adjustment. So to start up this topic today I am taking up the first type of capital adjustment. Children, you can see very well the question which is there in front of you. This question is the question which I have picked up from the CBSE paper of Delhi 2020. This was very important question which was little difficult for the students to handle due to adjustments and then due to the capital adjustment portion. तो अब हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं और इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन सो दैट वी कैन फर्दर व्हेन वी मूव इनटू द सॉल्यूशन इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. See, there are 2 partners M and N in the firm who are sharing profits in the ratio of 3:1. So 2 partners M and N, profit sharing ratio is 3:1. On 31st March 2019, the balance sheet which is given to you in the question was as follows. Asset side if we see, cash at bank 60,000, debtors 40,000, stock is 45,000, furniture is 1,55,000 and land and building is 5 lakh. If we move into the liability side, we can see that the creditors are there. Creditors are there with 1,10,000, general reserve 40,000, workman compensation reserve 50,000 and capital of M is 4 lakh, capital of N is 2 lakh. The total capital of M and N is 6 lakh. So the total of your balance sheet is 8 lakhs. Okay. Now we move on to the adjustment part. Adjustments हमें ये कहती हैं that on 1st April 2019 they admitted P as a new partner. So P has been admitted for 1/5 share in the profits of the firm on the following terms. What are the terms and condition? अब terms and condition अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो P brought rupees 1 lakh as capital. The new partner P brings 1 lakh as capital and capitals of M and N were to be adjusted on the basis of P's capital. On the basis of P's capital हमें adjust करनी है capitals of M and N. If there is any surplus or deficiency that was to be adjusted by opening current account. Now children, you have to be very careful about this language that if there is any surplus or deficiency that has to be adjusted through capital account, through current account. As in how the question says we have to do that. कभी question कहता है उसको कैश पेमेंट करनी है, हम कैश पे कर देंगे. अगर by opening through current account है तो हम current account के थ्रू करेंगे. Alright, so this is the most important adjustment of your question. Now we move on to the normal question adjustments which are given in this question. That are the goodwill of the firm was valued at rupees 4 lakh. Goodwill of the firm was valued at rupees 4 lakh. P brought the necessary amount in cash for his share of goodwill. So he brings 4 लाख तो गुडविल ऑफ द फर्म है. अब यहाँ पर फिर से मैं बताऊंगी मैक्सिमम स्टूडेंट्स 70% स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक. वो इसी गुडविल का पोर्शन निकालते हैं 1/5 न्यू पार्टनर का शेयर और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. आपको ध्यान देना है बेटा दैट गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन मेंशन्ड हियर. दिस इज फर्म्स गुडविल. सो फर्म्स गुडविल इज नॉट एंटायरली द गुडविल ऑफ पी. अब इससे P का शेयर निकालो. P का शेयर है 1/5. हम 1/5 ऑफ 4 लाख निकालेंगे एंड दैट अमाउंट ही इज गोइंग टू ब्रिंग इन कैश. एंड देन you can see the remaining part of the adjustment says that half of the goodwill was withdrawn by M and N.
half of the goodwill has been withdrawn by M and N. Liability on account of workman compensation amounted to rupees 80,000. You can see very well that in your balance sheet, liabilities of workman compensation is 50,000 and now it has been amounted to rupees 80,000. So increase in liability है ये आपकी. M took over the stock at rupees 35,000. So partner is taking over an asset. Partner takes over the asset at rupees 35,000 stock कितने का है? 45,000 का है, but it has been taken over by M at 35,000. Land and building was to be appreciated by 20%. आप appreciate कर देंगे. Now the question says that what is to be done? ये सबसे important line है, what is to be done, because आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, अब आप सॉल्व करना शुरू करते हो, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है वही सॉल्व करोगे, मार्क्स उसी के मिलेंगे, राइट? सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट. नाउ चिल्ड्रन 2020 का क्वेश्चन है, इसलिए ये तीनों चीज़ें इसमें पूछी हैं और हम इसको प्रैक्टिस में ले रहे हैं बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी ऑल्सो नीड टू नो दैट हाउ द एंटायर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सॉल्व. बट अदरवाइज अब क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं, ये पहले 8 मार्क का आता था, तो अब 6 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जनरली अब जो क्वेश्चंस देखने में आ रहे हैं उसमें लास्ट ईयर से सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट पूछा जाता है या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूछी जाती है. तो कैपिटल अकाउंट आप वर्किंग नोट में बना करके दिखा सकते हो, राइट? सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. How are we going to do this question? Revaluation account has to be made. So we have made the account in the format of PAPA, particulars account, and debit and credit as the formality. Okay. Now question says provision for workman claim has been increased. When workman for provision claim has been increased, it is 30,000 increase in your liability. Increase in your liability means you are going to show it in the debit side of your revaluation account. I hope I am clear about this. ये तो सबको पता ही है. Stock 10,000 से डिक्रीज हो रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है उसको नहीं, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि 45,000 के स्टॉक को 35,000 में पार्टनर टेक ओवर कर रहा है. सो वी हैव टू शो द डिक्रीज ऑफ स्टॉक एट 10,000. ओके. लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ बीन अप्रिशिएटेड, तो आप अप्रिशिएटेड वैल्यू यहाँ पर दिखा देते हो. इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय रुपीज़ 1 लाख. ओके. सो वंस यू हैव मेड दिस, आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हो. फिर से कहूँगी यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे अगर गलती हो जाती है कि भाई पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया और आपने उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली शो कर दिया विदाउट शोइंग हियर द डिक्रीज ऑफ द एसेट, देन योर आंसर ऑफ रिवैल्यूएशन विल गो रॉन्ग and your partner's capital will go wrong, your capital adjustment calculation will go wrong, your balance sheet will go wrong. So this you can understand how important one negligent error can be. तो आपको ध्यान देना है कि ये 10,000 रुपीज़ से डिक्रीज हुआ स्टॉक वो हमने यहाँ पर दिखाया. अल्टीमेटली वी गेट द प्रॉफिट. प्रॉफिट इज 60,000. 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था. 3:2 में था. लेट मी जस्ट क्रॉस चेक. 3:1 सॉरी 3:1 में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया 60,000 को 3:1 में, विच कम्स टू 45,000 एंड 15,000. ओके. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर एक्सेप्ट दिस 10,000. कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं थी और ये आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे. नाउ वी कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंसेस ले लिए हमने. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. जनरल रिजर्व 40,000 था जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम तो जितना था रिजर्व उससे ज़्यादा क्लेम आ गया. सो अब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास नहीं बचा वर्कमैन कॉम्पनसेशन, सो वी विल नॉट टेक दैट. We are now going to show the capital brought in by P. P brings 1 lakh as capital. आपने दिखा दिया by bank और by cash, कैसे भी दिखा सकते हैं. Premium for goodwill. प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 रुपीज़. 80,000 रुपीज़ आपका प्रीमियम आ रहा है. जो अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म था, गुडविल ऑफ द फर्म से शेयर निकाला आपने पी का और आप पी के शेयर से अमाउंट लेकर आ रहे हैं. पी ब्रिंग्स दैट अमाउंट ऑफ गुडविल एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर
among sacrificing partners. Premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital account. तो आपने वो शो कर दिया 60,000 and 20,000. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया यहाँ पर 45,000 and 15,000. ओके. अब प्रीमियम, हाफ ऑफ द प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर्स इन कैश. तो 60,000 का हाफ 30 हो गया, 20,000 का हाफ 10,000 हो गया. दिस अमाउंट हैज़ बीन विड्रॉन बाई योर ओल्ड पार्टनर्स इन कैश. जर्नल एंट्री हो गई एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश. आपने हाफ ऑफ द अमाउंट इनका विड्रॉ कर लिया इन लोगों ने, तो वो आपने विड्रॉल शो कर दी. स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एम एट 35,000. सो स्टॉक यहाँ पर आ गया. इफ देर इज एनी एसेट विच इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, वो हम यहाँ पर शो करते हैं इन द डेबिट साइड, एसेट टेकन ओवर. ओके. इफ देर इज एनी लाइबिलिटी बाई चांस इन द क्वेश्चन विच इज टेकन ओवर, वैसे तो ये एसेट टेक ओवर, लाइबिलिटी टेक ओवर डिसोल्यूशन में आता है, बट एक आधा ट्रांजैक्शन कोई ना कोई अगर आ जाती है तो in that case liability is if taken over, it will come in the credit side. Asset is if taken over, it will come in the debit side. कितनी वैल्यू से लिया है एम ने 35,000 से स्टॉक टेक ओवर किया है 35,000 से. ओके. सो हम बैलेंस क्लोज करते हैं. बैलेंस क्लोज करके कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे. ऑलराइट. सो बैलेंस क्लोज किया, 4,70,000 बैलेंस सीडी आ रही है. एन का बैलेंस सीडी आया 2,35,000. पी का बैलेंस सीडी आया 1 लाख. ओके. सो हम इसको क्लोज करते हैं. ये हमारा बैलेंस सीडी हो गया. और कैपिटल एडजस्टमेंट को डील करने का ये बेटर तरीका है जहाँ पर आप अपने कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करके कैपिटल एडजस्टमेंट्स नीचे वापस शो करते हो. दिस कैन बी लिटिल लेंथियर चिल्ड्रन, बट माई एडवाइस टू यू in my more than 20 years of service is that this type of capital adjustment is, if done by the student, never can be there be the mistake of capital adjustment. There won't be any mistake. ये थोड़ा सा लेंदी होता है, बट देन ये क्वेश्चन आपको एक्यूरेसी की तरफ लेकर जाएगा. तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? अल्टीमेट एम तो हर किसी का यही है ना कि हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए. राइट. सो आप यहाँ पर लेकर आते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,70,000, 2,35,000 एंड 1 लाख, जो बैलेंस आपका यहाँ पर आया था. ऑलराइट. अब क्वेश्चन ने बोला है कि 1 लाख इज कैपिटल ब्रॉट बाय पी एंड ही हैज़ गॉट 1/5 शेयर. सो आप कैपिटल एडजस्टमेंट करते हो. कैपिटल एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? लेट मी शो यू. See here I am going to show you P's capital, P's capital is rupees 1 lakh. 1 lakh वो लेकर आ रहा है for 1/5 share. So if I do the reciprocal of that, reciprocal share से हमारे पास total capital of the firm आ जाएगी. So the total capital of the firm is 5 lakh. How did I do that? 1 lakh उसकी capital है for 1/5 share. 1/5 शेयर के लिए अगर 1 लाख है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? 1 लाख इंटू 5/1 रेसिप्रोकल कर देंगे उसी का, तो वी गेट दिस एज अ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. टोटल कैपिटल को आप न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. व्हाट इज न्यू रेशियो हियर? ओल्ड रेशियो इज 3:1. P comes in for 1/5 share. So let the whole share be 1. Let the whole share be 1. (1 minus 1/5) क्योंकि ये तो P का शेयर है ना, तो 1/5 is P share. 1 minus 1/5 is 4/5. आप करते हो ना? 5 minus 1, 5 minus 1 किया आपने to get the remaining share. So this is remaining share. Okay. Remaining share का 3/4 will be taken by M. This is M's share. So ये कितना हो गया? 4 3s are 12
एंड 5 4 ज़ा 20। सिमिलरली हम n का कैप शेयर निकालेंगे, 4/5 का 1/4, सो दिस कम्स टू 4/20। अब LCM ले लें, 12/20, 4/20 एंड 1/5, ये P का शेयर था, राइट। सो इफ़ वी डू दैट इंटू 4, तो आपके पास रेशियो क्या आया, 12:4:4, राइट। 12:4:4। तो अब आप इसको कट कर देंगे 4 से, तो रेशियो आ गया 3:1:1। 3:1:1 का मतलब है कि दिस इज़ योर न्यू रेशियो। When this is your new ratio, आप M का कैपिटल निकालते हैं, M's कैपिटल विल बी हाउ मच, 5 लाख का 3/5, 5 लाख का 3/5, automatically it is 3 lakh and N's capital is 5 lakh का 1/5, so 1/5 is 1 lakh, right? So 3 lakh, 1 lakh, 1 lakh is the capital of your partners. I hope I am clear here. 3 lakh इसकी कैपिटल हो गई, 1 lakh N की कैपिटल हो गई, और P की कैपिटल तो 1 lakh है ही. So let's come back to the question. ये आपके अमाउंट्स हैं यहाँ पे 3 lakh, 1 lakh and 1 lakh. Now the question said that if there is any surplus or any deficiency, then that has to be transferred through current account. तो आप क्या करते हो? Now see very well. 3 lakh बैलेंस CD चाहिए आपको, 4,70,000 बैलेंस है M का, राइट. 3 लाख मुझे अब करंटली न्यू बैलेंस शीट में चाहिए एज पर न्यू अग्रीमेंट. 4,70,000 का ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस है. दैट मीन्स 1,70,000 इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो 1,70,000 हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन हिज करंट अकाउंट. ओके, आई होप आई एम क्लियर. एन की कैपिटल में 1 लाख चाहिए एंड अमाउंट है मेरे पास 2,35,000. दैट मीन्स मेरे पास कितना एक्सेस है? 1,35,000. दिस वुड बी ट्रांसफर्ड इन हिज करंट अकाउंट. ये जो बैलेंसेस हैं और जो मुझे बैलेंस मेंटेन करने हैं, फाइनल बैलेंस मुझे ये चाहिए. वट एवर इज़ द बैलेंस हम उसको प्लस माइनस करेंगे टू एडजस्ट. करंट अकाउंट में यहाँ पर करना है, अगर पे करना होता तो हम कैश के थ्रू पे कर देते, राइट. तो 3 लाख चाहिए, 4,70,000 अवेलेबल है, 1,70,000 का जो सरप्लस था दैट हैज़ बीन ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट. 1 लाख चाहिए एन के केस में, 2,35,000 इज द अवेलेबल अमाउंट. सो 1,35,000 द सरप्लस वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू करंट अकाउंट ऑफ एन. पी का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. पी के अमाउंट में जितना अमाउंट था उतना ही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, राइट. एंड देन यू विल क्लोज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनली नाउ. ओके, सो दिस इज योर कैपिटल अकाउंट, जहां पर मैक्सिमम बच्चे जिनका कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, दे मेक द मिस्टेक. और ये मिस्टेक उनको बड़ी भारी पड़ती है. हल्की नहीं, हल्के में नहीं लेना इसको बिल्कुल भी, ठीक है. नाउ वी कम टू द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में आप जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्रेडिटर्स तो आपके अनअफेक्टेड हैं. प्रोविजन फॉर वर्कमैन compensation claim which is given to you in your adjustment, that is now 80,000. पहले 50 थे, बढ़ गए 30, तो 80,000 हो गए. करंट अकाउंट ऑफ M एंड N. अब एक और शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ बेटा. अगर आपका करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट साइड में आता है, सीधा का सीधा इसको लाइबिलिटीज में शो कर दो. अगर आपके करंट अकाउंट बैलेंसेस डेबिट्स क्रेडिट साइड में आते हैं तो यहां से सीधा इसको एसेट्स में ट्रांसफर कर देंगे आप. ओके, this is for you to get in the form of a trick, that if it is coming in the debit side then you put it here directly in the liabilities column. If it comes in the credit side then you have to directly show it in the asset side. all right, अब आप यहाँ पर अपने करंट अकाउंट बैलेंसेस को शो करते हैं. करंट अकाउंट बैलेंस में आपका M था 1,70,000, N था 1,35,000. आपने ये शो कर दिया, ठीक है. कैपिटल्स आपको मैंने समझा ही दिया. 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख इज द न्यू कैपिटल ऑफ योर पार्टनर. सो यू आर गोइंग टू शो दैट हियर. हम एसेट्स की तरफ आते हैं. एसेट्स में कैश कितना लेकर आ रहा है? P.
P brought 1 lakh and he brought 1 lakh premium amount also 80,000. So 1 lakh 80,000 वो लेकर आया. If you see in your question, आपने screenshot लिया होगा, आपके asset side में cash था 60,000. So 60,000 plus 1 lakh 80,000 2 lakh का total. 60,000 already था plus 1 lakh capital and 80,000 premium. Total amount 1,80,000. So this makes a total of 2 lakh here. Amount आ गया आपका ये. Debtors हो गए 40,000. अब यहाँ पर माइनस भी है बेटा. ये तो 2,40,000 हुआ. 2,40,000 में से विड्रॉल है 40,000 की. ठीक है, ये याद रखनी है. 40,000 विड्रॉ किया है आपके पार्टनर्स ने. सो जब उनका विड्रॉल आपने माइनस किया तो द बैलेंस, नेट बैलेंस आफ्टर डिडक्शन कम्स एट 2 लाख. डेटर्स कोई चेंज नहीं है यहाँ पर. सो डेटर्स आर सेम 40,000. फर्नीचर नो चेंज 1,55,000. लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ बीन एप्रिशिएटेड बाय 1 लाख. यू हैड इन योर क्वेश्चन 5 लाख लैंड एंड बिल्डिंग. उसमें आपकी इंक्रीज थी, कितनी थी? 20% से अप्रिशिएट किया था. सो अप्रिसिएशन वैल्यू केम टू 1 लाख. अब टोटल ये 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख हो गया. आप क्लोज करते हैं 9,95,000 से. 9,95,000 से आपकी बैलेंस शीट टैली करती है ना. बेटा आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 9,95,000 भी लिखा है. कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जहाँ उनकी एसेट्स का टोटल ख़त्म हुआ या लाइबिलिटीज़ का टोटल ख़त्म हुआ वो वहीं पर उसका टोटल लिख देते हैं 9,95,000 ऐसे. तो हम ना तो यहाँ लिखेंगे ना इस अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे. यू हैव टू राइट इन द पैरेलल टू ईच अदर दिस वैल्यू ऑफ 9,95,000. This was your capital adjustment part 1, which I have shown to you and explained you with the help of this working note. Still there is if any doubt, you can get back to me and you can put your doubts in the comment section. Thank you for watching my video. I'll come with the next video of capital adjustment type 2. Thank you children.